میرے سارے بچے حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں۔ پیسے لینا تو دور کی بات ہے، ہم جس گھر میں جاتے ہیں اس گھر والے کو پابند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کھانا نہیں پکانا۔ محمد احمد قادری صاحب کی 3 شادیاں ہوئیں، ان میں سے ان کے 16 بچے ہیں۔ اتنے رشتے آپ نے کروائے ہیں، اگر آپ پیسے لیتے تو بڑے پیسے کما سکتے تھے، یہ پیسہ کیوں نہیں کمایا آپ نے؟ میں نے 1985 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ عصری تعلیم کا ہونا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے تمام جو بچے ہیں وہ دین کے ساتھ بھی منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی اور ایم فل ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی امجد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے علامہ محمد احمد قادری صاحب ہیں۔ علامہ محمد احمد قادری صاحب کی 3 شادیاں ہوئیں، ان میں سے ان کے 16 بچے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہوگی کہ علامہ محمد احمد قادری صاحب کے 16 بچے، اگرچہ یہ عالم دین بھی ہیں لیکن ان کے تمام جو بچے ہیں وہ دین کے ساتھ بھی منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی اور ایم فل ہیں۔ یہ پاکستان میں واحد ایسا خاندان ہے کہ جو علامہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا خاندان تعلیم سے بھی بہرہ ور ہے اور تمام پی ایچ ڈیز ہیں۔ علامہ محمد احمد قادری صاحب نے لاہور میں ایک اس وقت کی حکومت کی منظوری سے ایک اپنے طور پر ایک مردم شماری بھی کرائی تھی۔ علامہ محمد احمد قادری صاحب پاکستان کے شاید وہ ایسے پہلے علامہ ہوں گے کہ جو مدرسہ چلاتے ہیں، بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ گرلز کا سیکنڈری سکول چلاتے ہیں۔ لیکن اتنی دلچسپ بات یہ کہ اس کا 1 روپیہ بھی کبھی کلیکٹ نہیں کیا گیا، کبھی ان کی طرف سے باقاعدہ ڈونرز کی طرف نہیں جایا گیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف سے چندے کے باکس لے جا کے وہ لے جائے گئے ہوں، بلکہ علامہ محمد احمد قادری یہ تمام اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ کبھی اس مدرسے کی طرف سے کھالیں اکٹھی نہیں کی گئی۔ لاہور میں یہ بہت بڑی تعداد میں شادیاں بھی کرا چکے ہیں۔ علامہ محمد احمد قادری صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب جو دین کے ساتھ اکثر منسلک ہوتے ہیں، علامہ ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی آگے صرف ایک مولوی کی حد تک رہ جاتی ہے، صرف وہ علامہ بنتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے مختلف ہیں کہ آپ کی جو صاحبزادے ہیں، صاحبزادیاں ہیں، وہ علامہ بھی بنے، دین کی طرف بھی گئے، اس کے ساتھ وہ پی ایچ ڈیز اس لیول کی انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیسے مختلف تھے باقی ان سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چونکہ اپنی تعلیم دینی تھی، ابتدائی حفظ قرآن پاک کیا، اس کے بعد تجوید پڑھی، اس کے بعد درس نظامی کی، کلیات کیے۔ میں نے 1985 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ الیکشن لڑنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ عصری تعلیم کا ہونا بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے کوئی فارم بھرنا ہے، انگلش میں فارم ہے، اگرچہ ہمارے ملک کے قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمارا یہاں کا جو زبان ہے وہ قومی زبان اردو ہوگی، لیکن اردو زبان میں کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی۔ ہماری عدلیہ، تمام عدالتیں انگلش میں، ججز ہمارے انگلش میں، پورا نظام ہمارا انگلش میں۔ تو مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ نہیں، مجھے بھی عصری تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور وہی عصری تعلیم جو مجھے کمی محسوس ہوئی، میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی بہرہ ور کیا اور اعلیٰ تعلیم دلائی دینی بھی۔ میرے سارے بچے حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ میرے بچے الحمدللہ عصری تعلیم سے بھی بہرہ ور ہیں کہ بچوں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی کی ہے، سی اے کیا ہے، ایم فل کیے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ میرے بچے کاروباری ہیں۔ میری بیٹیاں الحمدللہ کالج میں گورنمنٹ لیکچرار ہیں اور الحمدللہ اچھی سیٹوں پہ میری بیٹیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ 16 بچے ہیں علامہ محمد احمد قادری صاحب، آپ کے 16 بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی ایسا ہے کہ جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو؟ نہیں، الحمدللہ چونکہ میرے گھر کا ماحول دینی ہے اور تعلیمی ہے، ہمارے گھر میں پڑھنے پڑھانا کا ہی رواج ہے، کوئی ہمیں
फारिग फिरना, लड़ाई झगड़े केसों में या आवारा फिरना, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मौजूद नहीं है। उसका फिर असर ये हुआ कि पूरी की पूरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये बताएं कि आपने इंतखाबी लड़ा साबिक वज़ीर आज़म मियां मेराज खालिद साहब के खिलाफ, वो तजर्बा कैसा था? ये इंतखाब आपने कब लड़ा था? ये तजर्बा कैसा रहा आपका? मैं दौरान तालीम से ही मेरे जहन में ये चीज़ मौजूद थी कि जनाब उलमा को भी सियासत में आना चाहिए, चूँकि इकबाल साहब ने, अल्लामा इकबाल ने भी ये कहा है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो मेरा जहन में भी यही था कि हम इस मुल्क के वो फ़र्द बने जो फ़आल फ़र्द हों और इस मुल्क के लिए अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। तो उसी हवाले से मैंने सियासत में हिस्सा लिया। सियासत में हिस्सा लेने के बाद मेरे सामने जो चीज़ें आईं वो यही आईं कि अगर दीनदार तबका बरसरे इक़्तिदार आएगा तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जमहूरियत में हक़ छीन के लिया जाता है, जबकि इस्लाम में हक़ जो है हक़दार के घर पहुँचाया जाता है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं या दूसरे उलमा मैदान में आएँ और सियासत में हिस्सा लें, ताकि हक़दारों को इस्लाम के मुताबिक उनका हक़ उनके घर पहुँचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा कामयाब रहा, चूँकि मैं चाहे भारी अक्सरे से हार गया, लेकिन ये चीज़ें हुई कि हमारे और मलिक मेराज खालिद के दरमियान कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई कि उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हों या मैंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हुए। आम तौर पर उलमाए दीन की औलाद वो हमेशा सिर्फ दीनी अलूम तक महदूद रहती है। तो जिस वक्त आपके बच्चे इस लेवल की तालीम हासिल कर रहे थे, पीएचडीज़ की तरफ जा रहे थे, एमफिल्स की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त लोगों की तरफ से आपसे कहा नहीं गया कि आपको एक दीनी तालीम तक ही महदूद रहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कहा भी गया, कहा जा भी रहा है, कहते भी रहेंगे कि यार मौलवी है, आपने अपने बेटों को मौलवी बनाना था। लेकिन चूँकि मैं भी रिवायती मौलवी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह दीन हासिल किया। दीन हासिल करके कहीं भी जुमा पढ़ाया, मुफ्त पढ़ाया, कहीं नमाज़ें पढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई, कहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोग्राम रखे तो कभी मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने अपने बच्चों का वही जहन बनाया कि यार हमने दीन की खिदमत करनी है, दीनदार हैं, मुसलमान हैं, लेकिन पैसे लेके हम दीन की खिदमत नहीं करेंगे। जो हमसे होगा इंशाअल्लाह वो दीनदार हम वो काम करेंगे दीन का। अब कौम के सामने नक्शा मौजूद है कि यार बच्चे भी दीनदार हैं, बाप भी दीनदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तरावी पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे भी तरावी पढ़ाते हैं, हमारे घर में भी तरावी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तरावी के पैसे कभी नहीं लिए। यहाँ भी मैं 2 ईदें पढ़ाता हूँ, 2 ईदें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ। जो मैं तो नहीं पढ़ाता, जो मैंने और कहीं रखा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 ईदों पे मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं लेता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से जो मुमकिन हो वो मैं देता हूँ। अल्लामा अहमद कादरी साहब, आप ये कहा जा रहा है कि आपने सैकड़ों रिश्ते अब तक करवाए हैं, वहाँ से तो आपने बड़े पैसे लिए होंगे, या फिर वो भी ऐसे ही चलता है फ़ी सबीलिल्लाह, वहाँ से भी पैसे नहीं लेते आप? देखो जी, रिश्तों नातों में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे लेना तो दूर की बात है। हम जिस घर में जाते हैं उस घर वाले को पाबंद करते हैं कि हमारे लिए खाना नहीं पकाना, सादा चाय ज़रूर पियेंगे बग़ैर बिस्कुट के, लेकिन पैसे लेना तो मुमकिन ही नहीं है। हम पाबंद करते हैं कि आपने खाना नहीं पकाना। दोनों फैमिलियों की पहले मालूमात लेते हैं, मालूमात लेकर रिश्तों को मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि मैंने अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाया हो। अब तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं आप लाहौर में? रिश्तों की कई किस्तें हैं। एक किस्त है जो तकरीबन 1980 से लेके 86 तक है, वो तो मुझे याद नहीं है। उसके बाद दूसरी किस्त है जो 97 से लेके और तकरीबन 2018 तक है, वो मुझे याद है, वो 600 के करीब रिश्ते हैं। और 2018 के बाद जो अब है ये तकरीबन 400 के करीब रिश्ते हैं जो मैं करवा चुका हूँ। इतने रिश्ते आपने करवाए हैं, अगर आप पैसे लेते तो बड़े पैसे कमा सकते थे, ये पैसा क्यों नहीं कमाया आपने? असल पैसा मकसूद नहीं है, 2 वक्त रोटी खानी है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त रोटी मिल जाती है, चाहे चटनी से मिल जाए। तो पैसे की ज़रूरत जब है ही नहीं, तलब नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, जितना मेरा खर्चा है उसमें अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है, 2 वक्त रोटी मिल रही है, तो पैसों का करना क्या है फालतू का।
मदरसे चलाए जाते हैं, मदरसों के नाम पे खालें इकट्ठी की जाती हैं, चंदे लेके तालिब इल्मों को भेजा जाता है, बड़े बड़े डोनेशंस इकट्ठे किए जाते हैं। ना आप खालें इकट्ठे करते हैं, ना आप डोनेशंस के लिए जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हें भेजते हैं। निज़ाम कैसे चलता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया उस्मानिया जहाँ हम बैठे हुए हैं ये 1952 का बना हुआ है। मेरे आने से पहले 2 कमरे मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इतनी लंबी चौड़ी जगह है, इतने पंखे हैं, बल्कि अहले इलाका के लिए हमने गहरा बोर करवाया, 755 फुट बोर करवाया है और बड़ा आरओ प्लांट लगाया है। लोग आप बाहर देखेंगे पानी भर रहे हैं, लोगों के यानी दाएं बाएं के लोग आते हैं पानी भर के लेके जाते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मदरसे में रहने वाले बच्चे 105 की तादाद है जो रात दिन रह रहे हैं। हमारी 250 के करीब जो है तनख्वाहें सिर्फ बच्चों का राशन और बिजली के बिल, गैस के बिल। अल्हम्दुलिल्लाह आप इलाके में मालूम कर सकते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास चंदा मांगने मैं मेरा उस्ताद या कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं गया। महल्ले वालों से नमाज ईद में हम ऐलान कर देते हैं कि यार हमारा कोई बच्चा खाल नहीं इकट्ठा करता, उस्ताद खाल नहीं इकट्ठे करता, जहां आपका दिल करता है वहां खाल जो है वो जमा करवाएं। जी, ये भी कहा जाता है कि आपने बहुत अरसा पहले एक मरदमशुमारी भी करवाई थी, बिलखसूस लाहौर में ये मरदमशुमारी हुई थी। कितना मुश्किल प्रोसेस था उस वक़्त ये सारा करना, उसका डाटा इकट्ठा करना, कितना मुश्किल काम था? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मेव बरादरी से है और मेव बरादरी चूँकि मैं ये समझता हूँ कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है वक़बाइल लिताअरफ़ू कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे कबीले बनाए हैं ताकि एक दूसरे की शनाख्त पहचान रखो। मेरा कबीला चूँकि मेव बरादरी है, मेरा ख़ानदान मेव बरादरी है, मुझे अपनी मेव बरादरी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। मेव बरादरी में बहुत ज़्यादा मसले थे रिश्ते नातों के, क्योंकि मेव बरादरी एक बहुत छतरी कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह मेव बरादरी लाखों में मौजूद है, लेकिन अदम राब्ता की वजह से परेशानियाँ थी। पहले हमारे नाई, हमारे मीरासी, हमारे शाह हमारे रिश्तों को तरतीब देते थे, वो तहकीक करते थे, मिलाते थे। ये अब कोई निज़ाम बदला तो मुझे ये कमी महसूस हुई। मैंने इसलिए ये बेड़ा अपने सर, बल्कि एक टीम बनाई, उस टीम के सर डाला और हम बाज़ाब्ता लड़की वाले लड़के वाले दोनों का डाटा लेते और डाटा लेके उसकी तहकीक करते और 2 ख़ानदानों को मिलाते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंतहाई कामयाबी उसमें भी हुई। इसी बुनियाद पे मुझे यह महसूस हुआ कि हमें पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में हिजरत करके आए हैं, इस हिजरत में कितनी कौम यहाँ आबाद हुई है आके। उस बुनियाद पे मैंने मेव कौम की मरदमशुमारी करवाई और इस मेव शुमारी में जो वक़्त के हाकिम थे उन्होंने रुकावट नहीं डाली, बल्कि जब उनके सामने हमने रखा, हम चाहते हैं कि हमारा इस मरदमशुमारी से कोई अलहदा मुल्क बनाने का मकसद नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारे कितने फ़ाल फ़र्द मिलते हैं जो मदद करेंगे पाकिस्तान की जो है वो इस्तेहकाम में, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेव शुमारी जब हमने की तो उस वक्त जो मेव शुमारी की दिक्कत तो आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। अहमद कादरी साहब रोल मॉडल हैं। अल्लामा अहमद कादरी साहब एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कई हवाले से एक बड़ी एग्जाम्पल सेट की है। ये आलिम दीन है, लेकिन इन्होंने अपने जो बच्चे हैं, अपनी बच्चियां हैं, उन्हें असरी तालीम से और असरी तालीम भी PhD की सतह तक ये उन्हें आरास्ता उन्होंने किया है। शादियां करवाते हैं, अब तक हज़ारों शादियां करवा चुके हैं, लेकिन किसी से आज तक एक पैसा नहीं लिया। मदरसा चलाते हैं तो उसके लिए कभी कोई ये डोनेशन इकट्ठे करने नहीं जाते, खाले नहीं लेते, बल्कि अपनी जेब से कोशिश करते हैं कि तमाम मदरसे के अखराजात उससे पूरे हो सके। इंतखाब लड़ा तो वो भी शफाफियत की बुनियाद पर लड़ा। ऐसी शख्सियात हमारे लिए एक नमूने की हैसियत रखते हैं कि जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने